रीड कर रहा है 37 होनी देर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। हिडन गुडविल ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋ क्वेश्चन रहते सी 37 एंड 39। बाकी पिछली क्लास कवर्ड अ बेसिक भी और तीन चार क्वेश्चन भी ਸੀ ਇਹਦੇ। 37 ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਐਂਡ ਸ਼ਿਖਾ were partners in a firm with capitals of rupees 1 lakh and 80,000 respectively। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? 1 lakh and 80,000। They admitted Nisha on 1st April as a new partner for 1/4 share in the future profits of the firm। Nisha brought 90,000 as her capital। Nisha acquired her share equally from Vanshika and Shikha। निशा नु की हो रहा acquired her share equally from Vanshika and Shikha। केडी टाइप आ? 1 2 3 4 5 केडी आ न्यू रेशियो दी? टाइप केडी आ? पहली गल 1 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਗਿਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ 3 ਜਾਂ 4? 3 ਚ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਫਰੋਮ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਔਰ 4 ਚ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ? रेशियो। तो टाइप 4 है ना। ओके। Calculate the value of goodwill of the firm and necessary journal entry on Nisha's admission, assuming that Nisha did not bring her share of goodwill premium in cash। Show the workings clearly। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਰਾਜੇ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਪ 4 ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੀਓ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੀਓ ਪੁੱਛੀ ਕਿਤੇ क्वेश्चन ਨੇ ਨਹੀਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਂਦੀ ਫਿਰ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਆ, ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਾਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਂਦੀ? ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੀਓ ਲਈ। ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਐਸਆਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪ 4 ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਐਸਆਰ ਹੀ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਰੇਸ਼ੀਓ ਤੇ? ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਡੋंट नीड दैट। ਮੈਨੂੰ ਐਸਆਰ ਚਾਹੀਦੀ। we will say कि sacrificing ratio किया equally as given in the question। वंशिका एंड शिखा 1:1। समझ रही चीज? टाइम कितना बचना हर जगह। क्लियर है जी? एसआर सानू ऑलरेडी गिवन है। सो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म की राजे ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਾਮ ਗਿਵਨ ਆ ਸਿਮਰ? ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ? ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਹਿਡਨ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਹਿਡਨ ਗੁੱਡਵਿਲ ਇਜ਼ दैट ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ based on new partners share of profit and his capital contribution। यही मीनिंग पढ़िया सी। सो न्यू पार्टनर दी कैपिटल कितनी है दसो? 90,000 एंड ओदा शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना? 1/4। अगर राजा ओदी कैपिटल 90,000 है विच रिप्रेजेंट्स 1/4, द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितनी हुई? 90,000 इंटू 4/1। ठीक है ना, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करके तो ਤੁਹਾਡੇ को आ गया कितना? 3,60,000। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਭ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦ ਹਿਡਨ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਫ ਦ फॉर्म। ठीक है, करिए सॉल्व। लिखो क्वेश्चन नंबर 37। लिखना स्टार्ट करो 37 का डाटा। तो सब तो पहली चीज की लिखोगे रजे, वंशिका एंड शिखा रेशियो गिवन है कितने? ओल्ड रेशियो गिवन है नहीं, इक्वल होगी 1:1। उदा वैसे नीड है नहीं सानू, नीड का दी है सानू सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो दी। तो सीधा वही लिख लिए। देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ वंशिका एंड दूजा शिखा इक्वली या इक्वल रेशियो, दैट इज 1:1। बोलो कितनी? 1:1। ब्रैकेट्स की लिख देना एज गिवन इन द क्वेश्चन। न्यू पार्टनर का नाम की है निशा। ऐसे हम देखो आ देखो, एज निशा एक्वायर्ड
हर शेयर इक्वली। बोलो यस और नो। रीजन ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਆਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਕੋਈ ਨਿਊ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 올ਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਸਆਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਆਰ ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਨੈਕਸਟ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਡਨ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਫ ਦਾ फर्म। निशाज कैपिटल। इशमीत कितना शेयर है निशा दा? शेयर कितना? 1/4। एंड कैपिटल कितनी? 90,000। सो देयर फोर टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितनी आ जाओगी? 90,000 इंटू 4/1, दैट इज ₹3,60,000। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊ ਫਰਮ ਆ ਗਈ। ਨਿਊ ਫਰਮ ਦੇ ਨਿਊ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਿਊ ਫਰਮ ਮੀਨਸ ऑल न्यू पार्टनर्स ਇਹਦੇ ਪਾर्ट ਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਚੋਂ कौन कौन? वंशिकाज कैपिटल, शिखाज कैपिटल एंड देन निशाज कैपिटल। ठीक है सिमर, क्लियर है ना राजे? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म जो जब ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ माइनस करिए, नॉर्मली इट शुड कम टू बी जीरो, है ना। जब टोटल जो तीनों ही बाहर काटते जीरो आना चाहिए था, बट नहीं आऊगा। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। अच्छा उन एक चीज समझ आई न्यू वर्ड तो, कि तीनों पार्टनर्स आओगे न्यू। उस तो बाद निशा दी कैपिटल कितनी गिवन है? 90,000। वंशिका और शिखा दी कितनी गिवन सी? 1 लाख और 80,000। बट सानू ओल्ड कैपिटल चाहिए कि न्यू चाहिए? न्यू। मतलब दिस शुड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। मतलब दो चीजें एडलेस करनी है, केड़ी केड़ी? एक रिवेल्युएशन अगर गिवन होया, प्रॉफिट लॉस होता है एडलेस करोगे, और अगर अंडरलाइंस है कोई वो भी एडलेस करो। ठीक है, बट क्वेश्चन कुछ भी नहीं गिवन। पिछले क्वेश्चन आ 38 ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ, तो ਤੁਸੀਂ ओल्ड पार्टनर्स ਦੀ कैपिटल एडजस्ट करके ਲਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। तो फिलहाल इस क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सो एज इट इज जान दो 1,80,000। तो तीनों माइनस करके दसो कितना आ गया? 90,000। यस और नो? दिस इज द हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, सानू की गुडविल चाहिए थी इस तो बाद? निशा दी। लिखो निशाज शेयर ऑफ गुडविल। 90,000 इंटू 1/4, ₹22,500। एक चीज और डिस्कस की थी एक क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन सानू स्टेप कम भी आना। दसोगे केड़ा? ये दोनों दी कैपिटल नो ਅਸੀਂ टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म भी तो कह सकते। टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म मींस ओल्ड बैलेंस शीट चो अगर तुसी रजा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दोगे तो हमें समझ आ जाएगा। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज तो ऑटोमेटिकली सड़को टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म मींस पुराने दोनों दी कैपिटल आ जाओगी। स्टिल निशास कैपिटल सानू अलग माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि वो ओल्ड विच नहीं ना सी। ठीक है, सो इन्हें ना सड़को निशा दी गुडविल समझ आ गई। ठीक है, एंट्री बोलो कितना आओगी हम। उन्होंने कैसी निशा डज नॉट ब्रिंग एनी गुडविल इन कैश। सो सिर्फ की आया कैपिटल आई। लिखो जर्नल। जर्नल हूँ एक गल समझ लो, चाहे क्वेश्चन च एक जर्नल एंट्री पैनी ना तां भी फॉर्मेट च पाओगे। ठीक है, कई बच्चे सोचते एक तो जर्नल है कि लॉन्ग क्वेश्चन है पूरे जर्नल्स का। नहीं रजे, चाहे एक जर्नल होए फॉर्मेट च पाओगे, चाहे एक जर्नल होए विद नरेशन करोगे। जर्नल एंट्रीज लाइफ टाइम ली गल समझ लो, विद नरेशन ही ओदा वैल्यू आ।
नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाओगे, बाद यू कांट क्लेम एनीथिंग। ठीक है, क्वेश्चन ने कभी नहीं कहना कि नरेशन दो, बट जर्नल ना यू आर लायबल टू गिव, एक्सेप्ट एक्सेप्शन की थी। अगर जर्नल ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ और ਤੁਸੀਂ एज अ वर्किंग कर रहे हो ਉੱਥੇ कुछ एक्सेप्शन लगाई जा सकती, फिर भी वैसे नहीं। ठीक है, सो बोलो कैश अकाउंट डेबिट टू निशाज कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लेके आई निशा? 90,000। फॉर्मेट ਕੀ ਆਂਦਾ ਸਾਡਾ ਜਰਨਲ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सेकेंड एंट्री बोलो। ਹੁਣ अगर गुडविल ਇਹਦੇ अंदर ही है सो ਇੱਥੇ डेबिट करोगे निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, फर्स्ट एंट्री जो देखे पूरा 90,000 लिख दोगे, पूरी कैपिटल थोड़ी करनी है, गुडविल का अमाउंट डिडक्ट करना कितना है 22,500 टू ओल्ड पार्टनर्स इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो कौन कौन है ओल्ड पार्टनर्स? वंशिका एंड शिखा है ना, टू वंशिका's कैपिटल अकाउंट to Shikha's capital account in the sacrificing ratio. SR was equal 11,250, 11,250। नरेशन की लिखोगे पेपर च। फर्स्ट being cash brought by Nisha, second entry being goodwill amount adjusted among old partners in the sacrificing ratio। क्लियर है? ठीक है, इस तो बाद होता नहीं जर्नल को इस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। Asin and Shreyas are partners in a firm. They admitted Ajay as a new partner for 1/5 share in the profits. Ajay brings rupees 5 lakh as his share of capital. The value of total assets of the firm was 15 lakh and outsider liabilities was 5 lakh on that date. Admission वाले दिन means old balance sheet ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। Old balance sheet ਦੇ time assets ਸੀ 15 lakh, liability ਸੀ 5 lakh, means capital कितनी आई 10 lakh। assets minus liabilities means ਤੁਹਾਨੂੰ total capital of old firm मिल गई। समझ रहे पिछले क्वेश्चन से कंसेप्ट क्यों सिखाया? सो सानू आसिन और श्रेयस की कैपिटल मिला के 10 लाख मिल गया। उस तो बाद तीजा पार्टनर 5 लाख अजय, वो तो पता ही है। ओके, स्टार्ट कितना होना इतने? अजय कैपिटल दी ब्रैकेट 1/5 इज इक्वल टू 5 लाख। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितनी आओगी 25 लाख। 25 लाख तो बाद माइनस तिना दी कैपिटल लिखी थी, तिना चो पुराने दो का तो कितना मिल जाना सानू 15 माइनस 5 करके 10 लाख। सो दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म। उस तो बाद माइनस अजय's कैपिटल 5 लाख, बचे 10 लाख दैट इज हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। हिडन गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म दी आई तो अजय दी कितनी 1/5 मींस 2 लाख रुपीज अजय दी गुडविल आ गई। हूँ अगे पढ़ो कि वो लेके आया गुडविल या नहीं, कुछ क्या क्वेश्चन ने नहीं किया। सो नॉर्मल की करते कैश अकाउंट डेबिट टू अजय's कैपिटल 5 लाख एंड अजय's कैपिटल डेबिट कितना 2 लाख टू आसिन एंड श्रेयस इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एसआर हम कितना आनी ओल्ड की बनने हो गए 1:1। न्यू का सिर्फ शेयर गिवन था टाइप 1, टाइप 1 एस आर ओ आर बिल्कुल सेम। सो 1:1 ही आनी। सो 2 लाख की स्प्लिटिंग होगी 1:1। क्लियर है? सारे लॉजिक देखो पहले दिन तो आज तक सारे जुड़ते हैं ना क्वेश्चन समझ आना। तो यू हैव टू परफेक्ट ऑन ऑल द कंसेप्ट्स। तो की एंट्री यही वाली बनी अजय's कैपिटल या अजय's करंट कुछ भी डेबिट कर सकते गुडविल 2 लाख रुपीज एंड टू आसिन एंड श्रेयस कैपिटल अकाउंट 1 लाख एंड 1 लाख। कोई डाउट? ठीक है, इस तरह सॉल्विंग आओगी। एडजस्ट कैपिटल 1/5 इज इक्वल टू रुपीज 5 लाख, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ गई 25 लाख। माइनस की कर दे आसिन कैपिटल, श्रेयस कैपिटल, एडजस्ट कैपिटल। आसिन और श्रेयस मतलब ओल्ड, सो टीसीओएफ मिल गया टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म। कितों मिले एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके, सो तो 10 लाख आया।
अजय दी कैपिटल 5 लाख आई, हिडन गुडविल ऑफ द फर्म 10 लाख आई, अजय दा शेयर 2 लाख आ गया। आगे एंट्री ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, पहली एंट्री कैश टू अजय कैपिटल 5 लाख, उस तो बाद चाहे कैपिटल डेबिट करो करंट डेबिट करो, दैट्स योर वे, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट हो जाऊगा। करो सॉल्व जल्दी। ओके ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, लॉन्ग क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਮਿਲਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ हिडन गुडविल ਦੇ, ठीक है। सुनो ध्यान एवरीवन। देखो बैलेंस शीट के अंदर पहली चीज की गिवन है, कोई अंडरलाइन कुछ की है साढ़े को आ दसो। ऊपर गिवन दीपिका राजश्री रेशियो 3:2, बैलेंस शीट च अगली चीज आप चेक करते, बोलो है कोई मार्किंग, एनी अंडरलाइन, कुछ भी नहीं। उस तो बाद 1 अप्रैल ਨੂੰ they admitted अंशु as a partner। ए पॉइंट कहना न्यू रेशियो विल बी 5:3:2, मतलब पहला काम तो हो गया साडा। ओल्ड रेशियो कितनी सी 3:2, न्यू रेशियो 5:3:2। एसआर फाइंड हो जाओगी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, दैट विल कम आउट टू बी 1:1। ठीक है, सॉल्व कर लोगे। बी पॉइंट कहना अंशु शेल ब्रिंग 32,000 एज हिज कैपिटल। न्यू पार्टनर्स कैपिटल समझ आ गई कितने काम आनी, जर्नल्स जे पाता नाम। सी पॉइंट कहना अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, पार्टनर्स देयरफॉर डिसाइडेड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हर टू द फर्म। किसी डेफिनेशन लिखी है हिडन गुडविल कि गुडविल विल बी बेस्ड ऑन अंशु शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यस और नो। हिडन गुडविल दी आही डेफिनेशन पढ़ी ਅਸੀਂ। ओके सो ये भी कितने काम आना गुडविल दी कैलकुलेशन एंड गुडविल कितने काम आती जर्नल, सो जे पा लिया ना। डी पॉइंट की कहता प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 60,000, ऊपर चेक करो कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 48,000, 48,000 वाली चीज 60 की करती, फायदा नुकसान, फायदा किन्ने का 12,000 का फायदा इतने। नेक्स्ट स्टॉक करता 40,000 का, ऊपर कितना, ऊपर स्टॉक किन्ने का, इसी पॉइंटली क्वेश्चन में चेक कर रहे हैं पहला स्टॉक क्वेश्चन ना 32,000 का मिसप्रिंट है इस बुक से ना। ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट कि स्टॉक किन्ने का सी सड़को 32,000 का, हुन किन्ने का हो गया 40,000, सो 8,000 का फायदा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 4,000, ऊपर प्रोविजन किन्ने दिया 800, प्रोविजन नो एसेट बनते है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी प्रोविजन इंक्रीज करन नाल नुकसान किन्ने दा 3,200 का नुकसान। फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, ये भी नुकसान। फर्नीचर ऊपर किन्ने दा 10,000, तो नुकसान किन्ने दा 1,000 का। एक पॉइंट गिवन है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज एप्रिसिएटेड बाय 20%, फायदा किन्ने दा 50,000 का 20% मीन्स 10,000 का फायदा। एनी डाउट, सारे पॉइंट्स हो गए। ई पॉइंट की कह रहे हैं देयर इज एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू द एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म, दिस लायबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द आउटसाइड लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी स्टेटेड इन द अबव बैलेंस शीट। ऊपर एक कहता आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज आ वो च इंक्लूडेड नहीं है, बट एक आउटस्टैंडिंग सैलरी आप खुद अलग क्रिएट करने के दी 8,000 दी, ये भी नुकसान पूरा 8,000, ऊपर वाले 2,000 अलग है ना। अगर वो कहता वही वाले आ तो सोच चेंज कितना करना सी फिर 6,000 का, बट वो कहता 8,000 एक अलग आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सो मतलब 8,000 या तो उच्च ऐड करो या अलग हेड क्रिएट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट वन पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो दिस लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है, नुकसान हो गया, प्रिपेयर इवेल्युएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो सानू आ पता चल गया दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन एंड इस लाइन दी रीजन तो समझ आया कि दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ हिडन गुडविल।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸਟੈਪਸ ਜੋ ਸਿੱਖੇ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, न्यू रेशियो फाइंड करनी, ओल्ड गिवन है न्यू गिवन है, फिर एसआर फाइंड करोगे। तो ओल्ड रेशियो लिखी, न्यू रेशियो लिखी, एसआर फाइंड करती की दस से 1:1 आ गई, बिल्कुल इजी। सेकंड स्टेप रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन लिए ਅਸੀਂ डिस्कस कर लिया। मशीनरी ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, 12,000 ਦਾ फायदा, यस और नो, 12,000 ਦਾ फायदा बिकॉज 48 तो 60 करता। सो ਇਹਦਾ ਲਿਖੋਗੇ ਬਾय प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट बाय स्टॉक 8,000, टू प्रोविजन कितना लिखना, 3200 ਦਾ नुकसान। देन बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, आफ्टर दैट टू फर्नीचर 1,000, यस और नो, इन्हें पॉइंट्स क्लियर। बाय प्लांट एंड मशीनरी, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय स्टॉक, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू फर्नीचर एंड नेक्स्ट पॉइंट ई पॉइंट सानू कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी किन्ने दी 8,000 दी, वो पॉइंट भी नुकसान साइड क्लियर किया एंड बैलेंस आ गया प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 17,800 आया, ओल्ड रेशियो किसी 3:2, सो 10,680 एंड 7,120 डन। रिवैल्यूएशन कोई डाउट आता पूछ, एनीवन, यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर। अगर उस तो अलावा कोई डाउट है पूछो। नव पक्का, इशमीत क्लियर सब नु। इस तो बाद स्टेप दसो जर्नल्स से चाहिए, जर्नल्स सानू पता गुडविल काम आनी, सो गुडविल कैलकुलेशन कर लीए पहला। सो हेडिंग लिख ली कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। सो की करते हैं, अंशुस कैपिटल ब्रैकेट्स के लिखना होता, प्रॉफिट शेयर दैट इज 2/10 और कैपिटल कितनी गिवन सी सानू 32,000। सो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितना आंदी, उस शेयर नु रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करके 32,000 इंटू 10/2 कितना आ गया, 1,60,000। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, न्यू तो समझ आया, तीनों पार्टनर्स माइनस करो, तो तीनों नाम लिख ले। की लिखिया, डीज कैपिटल, आरस कैपिटल, एज कैपिटल, तीनों नाम लिख ले। इस तो बाद अंशु दी कैपिटल तो पता ही सी, इनू पुट किया। दीपिका और राजश्री दी कैपिटल सिमर पुरानी लेनी कि नहीं, न्यू ते पहुंचना है ना, पुरानी सिर्फ इतने नोट कर ली 48 एंड 40, इतने की एडजस्ट करना, रिवैल्यूएशन द प्रॉफिट लॉस या अंडरलाइंस आई से क्या, रिवैल्यूएशंस की होया सी प्रॉफिट। सो 10,680 दीपिका नु मिले और 7,120 किनू मिले, राजश्री नु। दोनों ਉਹਨਾਂ ਦੇ रिवैल्यूएशन ਦੇ प्रॉफिट्स ऐड करते। अगर साइड को क्रेडिट साइड को अंडरलाइन ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ऐड होना सी ਇੱਥੇ डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर डेबिट साइड को अंडरलाइन ਹੁੰਦਾ माइनस होना सी, दैट इज एक्यूमुलेटेड लॉस। की ਉਹਨਾਂ ਦੀ न्यू कैपिटल्स आ गई, माइनस करके क्या आ गया, हिडन गुडविल ऑफ द फर्म 22,200। ए फर्म दी आई न्यू पार्टनर कौन है, अंशु, अंशु का शेयर आया 2/10 दैट इज 4,440 और रुपीज लगाने भूलियो ना, इसीलिए कहना नोटिंग पूरे ध्यान ना कॉपी पेस्ट करने, ताकि प्रेजेंटेशन हैबिट सेम रहे, उस कोई चेंजेस नहीं चाहिए। ठीक है, कोई डाउट रह जाए, कोई डाउट आंदा समझने का टाइम पूछो। प्रेजेंटेशन हले जब तक परफेक्ट अंदर नहीं होए उस चैप्टर दी, तब तक तुसी कॉपी पेस्ट करना नाल समझते हुए। ठीक है, सॉल्विंग आनी कि हाँ रिवैल्यूएशन सोचा। ओके रजे, देखो ध्यान है, कल ऐसी क्वेश्चन किया 66 दीपिका एंड राजश्री, ये सुनो हिडन गुडविल द लॉन्ग क्वेश्चन सिखाया। अच्छा एक पॉइंट ਅਸੀਂ कल डिस्कस ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਇਸ क्वेश्चन ਚ एरर ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟਾਕ 32,000 ਦਾ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਸੀਗਾ ਬੁੱਕ ਚ। सेकेंडली इस साइड लाइबिलिटी साइड भी एक मिसप्रिंट सी, दैट वाज बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹6,000। उधर 32,000 ਦਾ स्टॉक और इधर 6,000 ਦਾ बैंक ओवरड्राफ्ट जब ਤੁਸੀਂ एंटर कर लोगे उस तो बाद टोटल मैच हो। ठीक है, सो एक तो 6,000 ਦਾ बैंक ओवरड्राफ्ट ਤੁਹਾਡਾ मिसमैचिंग ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ठीक है, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਬੁੱਕ ਚ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ, 2,29,240। ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, 2,30,800। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਆਨਸਰਸ ਦਿਖ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਆ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਚਾਰ ਆਨਸਰਸ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਰੀਜ਼ਨ कि आंसर्स च फर्क किथे किथे आ सकता, पहली रीजन रजा तुहाडे को गिवन किया बैंक ओवरड्राफ्ट, जो क्वेश्चन वाले बुक वाले ने किया होया
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ। ਬੈਂਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਗਿਵਨ ਹੈ 6000 ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 2800। ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ क्वेश्चन ने एडजस्ट किए हुए आपस ਚ दोनों चीज़ा कि 2800 ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਔਰ 6000 ਦਾ ਮੇਰਾ 네ਗੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਆਪਸ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਤੇ क्वेश्चन ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਵੀ ਕੈਨ ਅਸਿਊਮ ਐਨੀਥਿੰਗ। अगर ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੀ brought his capital 32000 ਅੰਸ਼ੂ brought her capital 32000 in cash, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਸ਼ ਚ ਐਡ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। बुक वाले ने की ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਬੈਂਕ ਥਰੂ। ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਸੋਚੋਗੇ ਸੋ ਕੈਸ਼ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ। ਬੈਂਕ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 2800, ਨਿਊ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 32000 ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ 네ਗੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਤਾ 6000। इस बैंक ओवरड्राफ्ट ਨੂੰ अगर बैंक बैलेंस ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋਗੇ दोनों साइड 6000 ਨਾਲ डाउन आ जाओ, दोनों साइड 6000 ਨਾਲ डाउन आ जाओ। अगर ਹੁਣ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੈਸ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ 6000 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦਾ 6000 ਆਪਸ ਚ ਸੈਟ ਆਫ ਕਰਤਾ ਫਿਰ बैलेंस शीट दोनों साइड 6000 डाउन चल जाए। इन्नी चीज क्लियर होगी। पहला रीजन ए सी जिदे करके दो आंसर्स बन सकते। हुन गल है बाकी दो क्यों बनने, बाकी दो रीजन बीइंग गुडविल। गुडविल अगर वो नहीं लेके आया, क्वेश्चन जो नहीं लेके आ रहा है ना गुडविल, ही इज नॉट अनेबल, अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल। अगर पार्टनर गुडविल नहीं लेके आया ਅਸੀਂ सेकंड एंट्री किस तरह मानने हैं, इधर अंशुज कैपिटल अकाउंट डेबिट और अंशुज करंट अकाउंट डेबिट। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ अंशुज कैपिटल, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ कैपिटल डेबिट ਕੀਤਾ कैपिटल ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ 4440 ਨਾਲ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ अंशु ਦੀ कैपिटल बैलेंस शीट ਕਿੰਨੀ ਰਹੂਗੀ ਫਿਰ 32000, ਉਹ ਕੱਟਣੀ ਨਹੀਂ। और अंशुज करंट अकाउंट का बैलेंस किहड़ा ना डेबिट बैलेंस, वो एसेट साइड 4440 आया ना, फिर दोनों साइड 4440 ऐड होके आओगे। तो इसलिए दो आंसर्स की रीजन तो हाँ कैपिटल और करंट के फर्क तो दो आंसर्स की रीजन तो कि बैंक ओवरड्राफ्ट एडजस्ट किया कि नहीं किया। दोनों ऑप्शन साढ़े सही है, बोथ केसेस दोनों ऑप्शन सही है, गुडविल भी दोनों आंसर सही है और कैश और बैंक भी दोनों सही है बिकॉज क्वेश्चन इज साइलेंट। तो ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਬਸ ਮੈਚ ਹੋਣਾ, मतलब ਇਹ दो पॉइंट्स करके फर्क आए आंसर ਦਾ, बैलेंस शीट ਦੇ बुक ना मैच ना करे बट आपस ਚ दोनों साइड मैच हो जाए, दैट्स ओके। ठीक है, क्लियर है चीज। इस करके ਤੁਹਾਡਾ इस तरह फर्क आया। क्लियर है बोलो। चलो नेक्स्ट देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का कोई डाउट तो नहीं हो। इंपॉर्टेंट एक न्यू चीज की सीखी, अगर तुसी सेकंड एंट्री पाई अंशुज करंट अकाउंट डेबिट, अंशु ਦਾ करंट अकाउंट डेबिट ही रहा ना, और डेबिट बैलेंस विल गो टू द एसेट साइड ऑफ न्यू बैलेंस। उस साइड तुसी कहोगे कितना, उस साइड कैपिटल 32000 ही आओगी, 27560 तो नहीं आओगे, ਉਹਦਾ रीजन तो मैच हो जाए। ठीक है राजा, चलो।